آج کی ہماری مجلس فتاوی عالمگیری کے سلسلے کی اسکین پہ 24 واٹسپ پہ چلا تھا اور اس پر شیخان بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک ایم پی کے اندر زنا کا طریقہ زنا کو بتایا جا رہا ہے اور اس پر کوئی حد نہیں ہے، زنا کرنے کا طریقہ بتایا جائے اور اس پر کوئی حد نہیں ہے. بس اسی مسئلے پہ ہماری بات ہوگی. آپ اسی میں سے اس کا اشکال کیجیے، سوال کیجیے، میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں اس کو جواب دوں گا اور اسی میں ہماری بات مکمل ہوگی. یہاں سے میں بولوں گا، وہاں سے آپ بولیں گے، پیچھے کوئی ساتھی نہیں بولے اور طریقہ یہ رہے گا آپ سوال کیجیے، میں جواب دوں، وہاں تک آپ کو خاموش رہنا ہے. اگر میرے جواب پہ کوئی اشکال ہوتا ہے تو میری بات پوری ہونے کے بعد آپ کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب بات کہاں سے اسٹارٹ میں وہاں سے ہاں آپ بولو جو جگہ ایک گروپ ہے اللہ سمجھ، مطلب اس میں بہت کافی اپنے انفی بھائی بھی ہے اور اپنے علیحدہ بھائی بھی ہے. تو وہاں پہ محمد پاکستانی سے کچھ نام ہے تو محمد عقیل، تو انہوں نے ایک میسیج کیا تھا کافی لمبا تھوڑا کہ اس بات پہ اجماع ہو گیا ہے کہ کوئی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے. تو شیر خان میں نے وہاں پہ وائس بھیجی، بولے بھائی اگر ایک امام کی تقلید کرنا اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنا واجب اس پہ اجماع ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت سے ایسے مطلب غلط ہم لوگ کے عقیدے کے حساب سے ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ ان کے نام سے کسی نے غلط منسوخ کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے کسی یہودی یا کسی عیسائی نے منسوخ کر دیا ہے. باقی وہ امام ہے، ہم ان کی عظمت کرتے ہیں. باقی ہمارے عقیدہ ہے کہ وہ اتنے بڑے امام وہ ایسے غلط مسائل بیان نہیں کر سکتے جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں. تو پھر شیر خان بھائی نے کوئی وائس بھیجی، دیکھو یہاں پہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس پہ کوئی حد نہیں ہے، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اور وہ وائس اللہ سمجھ میں تھی تو اپنے عبدالحمید بھائی نے اٹھا کے جی ایم کے آپریشن میں بھیج دی. پھر وہاں پہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی ایک مسئلے پہ بات کرنا ہے. بولے ایسے کوئی بھی آپ کی اشکالات ہے زنا کے تعلق سے تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ایسی بات ہوئی تھی. دیکھو بھائی آپ نے ابھی جو بات بتائی کہ گروپ میں ایسی بات ہوئی تھی کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ صرف اسی پہ بات ہوئی، نہیں ایسی بات ہوئی تھی کہ ہم جو جمع ہوں گے وہاں صرف فتاوی عالمگیری کی اسی اسکین پہ بات دکھائیے اگر آپ انہوں نے ہی میسج ڈالا تھا آپ نے اسی اسکین پہ، ہاں اسی اسکین پہ اسی الفاظ کے ساتھ میسج دکھاؤ، اسی الفاظ کے ساتھ. میں مطلب اور میں جو تیاری کرتا ہوں بھائی آپ کی فتاوی عالمگیری وہ بچت کتابیں اس میں میں نے جو بھی ایک مسئلہ 4 یا 5 مسائل زنا کے اوپر ہے، 4 یا 5 مسائل زنا کے اوپر جو بھی ہے مولانا وہ بعد میں لیں گے. آج صرف فتاوی عالمگیری ہی کتابیں اور مسئلے صرف زنا کے مسئلے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ شکل الگ ہوتی ہے. آج کا ہمارا موضوع یہی رہے گا. اگر اللہ کرے اسی مسئلے کے اندر آپ کے سارے سوالات بھی آ جائیں گے، اگر زنا کے تعلقات سے ہیں تو سارے سوالوں کے جوابات آ جائیں گے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی دوسرے سوالوں پر تو نیکسٹ ٹائم پھر طے کر لوں. لیکن آج کی بات تو صرف فتاوی عالمگیری ہے تو زنا کے ایک مسئلے نہیں، میں نے 4 اس کے اندر سے مسائل نکالے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آج اپنے بیٹے تو آج سب اصل میں جو ہمارا موضوع ہوا تھا موضوع زنا کے اوپر طے ہوا تھا اور یہ زنا ہی کے تعلق سے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ مطلب کافی کتابوں کے زنا کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. آپ سمجھے نہیں جو شیخ خان بھائی نے جو دیا تھا نا کہ بھائی اگر حنفی کی حکومت آ جائے گی تو حنفی کے ایسے فتوے دیں گے امت کے اندر برابر، تو آپ سوچو کیا ہوگا. تو مسئلہ تھا کہ اگر کسی عورت کو اجرت پہ لیا جائے، اس کو درہم کے عوض میں کرا دے تو مجھ کو قابو دے دے برابر. تو مسئلہ وہ تھا، موضوع تھا. انشاءاللہ اسی موضوع بات کریں. موضوع پہ عبدالحمید بھائی بات یہ دونوں کی بات اسی پر ہوئی تھی نا، یہی بات ہوئی تھی عبدالحمید بھائی آپ کی. تو آپ پہلے اسی کا اسی کو حل کرنا ہے. آپ بولتے اس سے ہٹنا نہیں ہے. جب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 4 امام کو اوپر لوگوں کا اور امت کا اجماع ہے تو میں نے عبدالحمید صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا اجماع برابر ہے، اس پہ سب مسائل صحیح ہے لیکن کچھ مسائل غلط ہیں. اس میں کچھ کے اندر یہ زنا کے تعلق سے میں نے پیش کرا تھا جس کے اندر ہدایہ کی عبارت تھی اور در مختار کی. اور میں نے کہا ایسے تو ابھی بہت مسائل ہیں لیکن اپنے صرف اسی کو لیتے ہیں زنا کے. تو 1-2 مسئلے ہدایہ کے اندر 2-3 مسئلے اور در مختار میں اور زنا کے تعلق سے ہی زنا سے وہ مسئلے وہ ایک سائڈ کے نہیں. پہلے ہوئی کہ بھائی ہم میٹنگ کریں گے، یہ پہلی آپ کی ہوئی سے کہ ہم میٹنگ روبرو ملنا چاہتے ہیں. ایسا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں نے یہ جو آئے گا یہ اتوار کو صبح 10 بجے فتویٰ عالمگیر کے پوچھنا ہے اور بات کرنا ہے. تو فی الحال کالج کے ساتھ 2 روپیہ ملا کے 4 سال
तो फिलहाल अभी इसके ताल्लुक जो करना है या वो ग्रुप में आप ऐलान करो, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल होगा। अलग अलग है अभी निकाल ये मसला मौजूद है ना, बस वही एक ही है। आप बाद में देख लो, बाद में देख लो, इंसान आ रहा है। बात इसी में ये एक ही ऑडियो भेजी थी शहजाद भाई। इस पूरी मीटिंग का वीडियो दोनों जानिब से किया जाएगा। फतवा आलमगीरी के इस स्कैन पेज पर हमारे आलिम इसका जवाब देंगे और तुम्हारे आलिम मौलाना बिलाल साहब को इसमें ये साबित करना होगा कि ये जो लिखा है वो सरासर कुरान हदीस के खिलाफ है और असल सही मसला कुरान हदीस के मुताबिक ये है। साहब लिखा है इसमें, बताओ इनको कि साहब ये उसी टाइम पे तय हो गया था, जब ये उस टाइम पे मैसेज डाल दिया गया था। तो हमारी बात सिर्फ भाई मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई, मैंने कहा कि जो भी मेरे सवाल है देख लो ये देख लो, आप देख लो कि जो भी सवाल है सुन लो, वापस इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को अभी तक ये जो आप बता रहे इसको करते आइंदा वक्त में अपने जो जिना है चूनी है या खून के मसले है या ऐसे जो भी इश्काल है आइंदा के सही करते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने जिस तरह ये फतवा आलमगीरी का स्कैन डाला उस पर आपके अब्दुल हमीद भाई से बात हुई और आज की हमारी ये मीटिंग तय हुई। आज का मसला पूरा हो जाना, तो इसी तरह तुम दूसरा स्कैन डालो दूसरा मसले पर, इसी तरह हम तय कर लेते हैं पूरा। लेकिन मेरे लिए तो अधूरा हो गया ना कि मैं तो उसको दूसरे मसले साबित करने जा रहा हूं। मौलाना सुनो, अब्दुल हमीद भाई और शेरखान भाई की बहस चल रही थी, उसमें अब्दुल हमीद भाई ने आपको फैसल बनाया कि आप फैसल करो क्या मसला है। आपने उसमें ये कहा लास्ट में कि देखो ठीक है मुझे फैसल बनाया, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अब्दुल हमीद भाई कि इसमें साफ लिखा है कि ये ज़िना है और उसको हद नहीं है। वहाँ कभी तुमने कोई दूसरी इबारत पेश नहीं की। तो दूसरे अच्छा मेरी जब फोन पर बात हुई ना तो मैं इनको बोला, फिर मैंने ठीक है अपने मिलेंगे जब बात करेंगे। अच्छा एक बात मैं देखो भाई, मैं दूसरे मसले के साबित कर देता हूँ। वहाँ पे लिखा है कि पहले लिखा है कि किसी को इजारे पर लिया ताकि उससे जिना करे, कोई हद नहीं है। मैंने बार बार पूछा अब्दुल हमीद भाई को, अब्दुल हमीद भाई आपकी किताब की बात है किस आलिम ने इतनी बड़ी जरूरत कर दी? हालांकि कुरान के आगे जान ये तो जान वो पूरी आयत है। फिर वो अब्दुल हमीद भाई बोले कि भाई ये मसले में हमारा फतवा नहीं है, नीचे वाले भी मसले पे फतवा है। बोले कौन सा? साहिबी ने फरमाया उसको हद लगाई जाएगी। बोला बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी एक जगह इबारत है हिदायत के अंदर, उसमें लिखा है कि इमाम को जो कोई हद नहीं लगाई जाएगी, इसी को तरजीह दी गई शरअ की किताबों में। अब वो मसला मैं उससे साबित करूँगा कि नहीं करूँगा? अच्छा, दूसरी जगह जो लिखा गया है कि हद नहीं लगाई जाएगी, उसका ताल्लुक इजारे वाले मसले इजारे वाले मसले में नहीं। मसला बदल जाता है, लेकिन जाता है ना, मसला बदल जाता है। अच्छा ठीक है, आप ये साबित करो कि इजारे पर लेके अगर किसी जिना किया जाए तो उस पे हद दूसरी है, और अगर ऐसे जिना किया जाए इजारे पर उस पे हद दूसरी है। इसमें कोई हद में फर्क है? ये सारी बातें इस मसले में आ जाएगी। लेकिन अच्छा तो मेरे को मौका दो कि ये मसले में उस मसले साबित करूँ। इस मसले को मैं साबित करने के दूसरे मसले में जाऊँ नहीं जाऊँ। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि अगर किसी औरत को उजरत पे लिया या ये बात मैं इसकी इज्जत देता हूँ मुझे जिना करने चाहिए, और इस तरह पहले लिखा है इसमें इस पर कोई हद नहीं है। फिर लिखा है कि साहिबैन के ने फरमाया कि इस पर हद है, बराबर। मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ तो भाई सुनो मेरी बात, मैं इसका जवाब दूंगा। अब मेरे जवाब पे जाहिर सी बात है अभी आप इश्काल कर रहे हैं तो वही इश्काल आपको होने चाहिए। वहाँ आप इश्काल करना है मौलाना देखो आपने जो जवाब दिया है तो वहाँ आप मुझे दूसरा इश्काल करने के लिए ये तो बिल्कुल देता हूँ ना, जवाब में इश्काल करो। मैं आपके जवाब में इश्काल नहीं हो रही है। चोरी का मसला नहीं लाया तुमने को लेकर आया किताब से निकाल संडे के दिन चीना के जितने भी मसले ले तमाम मसले सब आ जाएंगे। फिर यूँ नहीं कि एक ये चलेगा नहीं ये चलेगा, सब आएंगे। आप ये मजलिस पूरी हो जा रहे हैं जिस तरह ये मस्जिद अभी पूरी हुई तो मेरी अधूरी रहेगी। मैं तो बोल रहा हूँ ये भी आलिम की बात नहीं करता भाई, किसी बात के ऊपर है आलिम तमाम चीजें बात कर आलिम तमाम मसले बात कर भाई। आलिम आलिम हुआ आलिम भाई, तमाम मसले बात कर भाई। आलिम आलिम हुआ आलिम भाई। मैं तो फिर दूसरे बात सुनिए आप शेरखान भाई ने जो मौजूद किया था और जिस टॉपिक पर उन्होंने ऑडियो में बात करी है बराबर, इजारे वाला जो मसला है बराबर उसी पर बात कर लें। और अब जो कहते हैं मेरे लिए अधूरा रहेगा मसला, इस वाले नेक्स्ट टाइम हम इसको पूरा इसी अंदाज से पूरा कर लेंगे। अच्छा अभी ये कि आलिम में बात कर रहे थे अगले तौर पर पूरे मसले के साथ मैंने ऐलान किया कि मैं किताब सलात पे बात करने वाला हूँ और किताब मतलब सलात के मौजूद में मुनाजरा है। अब सलात में कौन सा मौजूद? एक
भाई रफुल पे करोगे, आमिन बिल जहर पे करोगे और सूरह फातिहा पे करोगे, किस पे करोगे? मतलब अब जिना का मसला है, इस तरह तुम्हें स्कैन दे दो। नमाज के मसले पर आपने मना करने के बाद सिर्फ रफुल यदैन बात सुनो, सिर्फ रफुल यदैन लेकिन वहाँ मौजूद है होगा, एक मौजूद है यदैन पे होगा तो रफुल यदैन की जितनी हदीसें मुतल आएंगे ना सामने ले आएंगे। इस तरह जिना है तो जिने की जो लेकिन भी यहाँ उसका जिना अलग है। जीना की बहुत किस्में हैं, मैं सारे को बताऊंगा जीना कौन सा मसला है, जीना की कौन सी किस्म बताएंगे इंशाल्लाह आएगा। कहाँ हद लगती है, कहाँ हद नहीं लगती, हदीस में कहाँ का इसका खुलासा है, मैं भी बताऊंगा। बात करो, जवाब दे दो। इनकी बात है जो मौजूद है इनकी अरे यार आप बताओ आलमगीरी का बताओ आलमगीरी के मसले बात करूंगा भाई, तो भाई उसमें ऐसा अभी इसमें साहिबीन पे आपने पक्के के छूट जाओगे भाई, इस पे अमल होगा, अमल नहीं ऊपर वाले भी नीचे पे अमल है। बाकी दूसरी किताब पे लिखा है कि इमाम बोने का जो कहा है कि उस पर जिना करने वाले पे हद नहीं मारी जाएगी, और शरा की किताबें में इमाम साहब के कौल को तरजीह दी गई है। तो भाई ये मेरा तो अधूरा मसला उससे साबित होगा। अब ये दूसरा मसला करने की इजाजत बात सुनो, ये टेंशन ना लो, हम ये कह के छूट जाएंगे कि साहिबन का इस पे फतवा है, नहीं, मैं इंशाल्लाह हदीसों से दलाइल पेश करूंगा। हदीस दलाइल पेश करो, मैं आइए चाहता हूं से दलाइल मैं यही चाहता हूं उसमें कि कौन से जिला में हद लगी और कौन से क्या होगा, वो तो मुझे उसका क्या होगा उनको रखने दो कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दोगे ना, आप जवाब इसमें से रखोगे। आप कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप कुरान हदीस की रोशनी में जवाब लो। यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे जिना के मसले उस पर कुरान तो स्टेप बाय स्टेप रखो, स्टेप अगले संडे को पूरे जिना मेरे सामने पहले रखो, कौन से मसले कौन से मसले लेंगे, ये मीटिंग पूरी हो। आप पढ़ने में पूरी किताब नहीं, जिस तरह शेरखान भाई ने ये स्कैन रखा और इस पे ये बात तय हुई है, इस तरह आपको मुझे स्कैन बताना है। हम ये समझ लेके बताओ आलमगीरी हिदायत पे जितने भी जिना के मसले किताब सब आए, मुझे बताओ, तरतीब बताओ मौलाना, हम ये सवाल मुझे भी तो तैयारी करो ना। मैं एक हफ्ते रुक जाओ 2 मिनट, एक हफ्ते में तैयारी तो 15 दिन का टाइम रखो। जिना के आपकी किताबें 15 जिना के तमाम मसले 15 दिन की जरूरत क्या है, हफ्ते में हम तैयार है, लेकिन आप उसकी डिटेल रखो, कौन कौन से मसले लगाएंगे आप बताया। कौन सी बात भाई आपकी है, किताब आपकी है, आपके वहाँ से छपी देवबंद मेरा कहाँ। अच्छा मैं बोल आप बता रहे हो कि मैं 4 से 5 मसले पेश करूंगा, बराबर फिक्स बात 4 से 5 ये 3-4 मेरी बात सुनो, मैंने ये 4 से 5 मसाइल 3-4 दिन में तैयारी की है। एक हफ्ते में तो मैं अल्लाह करे जो मसला मिलेगा सिनाम का उस पर तैयारी करूंगा भाई। आप बात समझो मेरी बात तो सुनो, 4 से 5 मसले पर आपने तैयारी की है, मतलब 4 से 5 सवाल है आपके किताब में। अभी फिल वक्त 4 से 5 वो 4 से 5 स्टेप भेज दो। अच्छा फिर अगले संडे को मैं और तैयारी करता है, बोले भाई ये तो मुझे बताया नहीं था, तो भाई इससे बेहतर ये मैंने पढ़ लो 4-5 के बाद अगले तुम संडे कहेंगे कि भाई वो तो 10 मसले हैं, दूसरे सवाल है। हाँ तो मैं वही जिना के हटवा नहीं, उससे पहले तय करो कौन से मसले लेके आएंगे। मैं क्या करूँ, ये सब इधर आए भाई लोग क्या किया सच और झूठ का पालन पड़ा। अब हम कोई भी स्टेप को देते हैं, अब उसके सामने अगेंस्ट में दूसरी बात लगेगी, फिर तुम ना बोलोगे। हमको ऐसा काम करोगे, जिला का हमने टॉपिक आपको पता था, अब तुम तुम्हारे को जो ठीक लगे तुम्हारी तैयारी करो, हमको जो ठीक लगता है हमारी तैयारी करो। उसके अंदर ये नहीं चलेगा कि ये बात नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। इधर जो भाइयों को लगे उनको बात तक पहुँचना है। किताब में जिना साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तुमको ये साबित करना। सुनो मेरी बड़े हम ये साबित करेंगे आपकी किताब से जिना साबित हो रहा है, और आपको ये साबित करना है कि आपकी किताब से जिना साबित नहीं हो रहा है। अब उसके सामने तुम कोई भी रिवायत रखो और हम कोई भी रिवायत रखो, हमारी तो तुम्हारी मैटर है, हमारी मैटर है। अंत में क्या आना चाहिए, हम ये साबित करेंगे है और तुमको ये साबित करना नहीं है। वो कोई भी बात लाओ, तुम्हारी किताब से देगा हमारा। ठीक है, आप बोलो आप जो कह रहे हैं ना भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जिना का आम टॉपिक रखो, जितने भी सवाल लेके आए किताबों से, आप तैयारी कर लो जवाब देने के लिए, आपकी किताब है ठीक। मसला वो नहीं है हमारे लिए कि कितने सवाल हैं, इतने सब सवाल, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बात घूम जाती है। सुनो पूरी बात कि यहाँ बतावा आलमगीरी के इस मसले पे हमने इन्होंने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा जवाब परफेक्ट बैठ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बात जाएगी हिदायत पे, और वहाँ पे मसला यहाँ पे मसला इजारे का है, और वहाँ इजारे का नहीं होगा, वहाँ जिना की दूसरी किस्म होगी। बात घूमेगी, ये ज़बरदस्ती वहाँ ले जाएंगे, ये ज़बरदस्ती मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, नतीजा हमारी मजलिस का कोई नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप फतवा आलमगीरी आज हैं तो इसको क्लियर कर दो। जैसे शेरखान भाई ने ये कहा कि ये फतवा आलमगीरी में इतना गंदा मसला है, मौलाना बिलाल साहब ने ये कहा कि ऐसा कौन आलिम था बेवकूफ़, इसको लिखने की ज़रूरत क्या थी ये मसला। क्या लिखते हैं ये पता है आपको? अगर एक औरत को इजारे पर लिया ताकि इससे जिना करे, क्या लिखते हैं? फतवा और मसला देखो और इनके मुफ्तियान देखो।
अगर शरीयत हनफी नाफिज कर दी जाएंगी तो ये फैसले ये देंगे, अगर एक औरत को इजारे पर लिया ताकि इससे जिना करे और इससे वती करे, या कहा कि तू ये दरहम ले ताकि मैं तुझसे वती करूं, या कहा कि तू मुझे अपने ऊपर इस कदर दरहमों के औज काबू दे, बस औरत ने मंजूर किया और वो ऐसे वाक़या हुआ तो इसको हद न मारी जाएगी, यानी इनके नज़दीक ये कोई गुनाह नहीं है। कि इजारे पर तो बात आज क्लियर कर दो फतवा आलमगीरी की कि ये मसला अपनी जगह पे कुरान हदीस के मुताबिक है या नहीं, फिर दूसरी किताबें स्टेप बाय स्टेप लेंगे हम। अगर आप दूसरी बात रख ले देखा नहीं, बात घूमेगी भाई, तुम समझो। सुनो, जैसे तुमने बात बोली है कि हम हमारी किताब से साबित करेंगे, तुम तुम्हारी नहीं, हम तो तुम्हारी किताब से करेंगे भाई, हमारी किताब से क्या कर रहा हूँ। एक मिनट, जैसे मौलाना क्या उसकी किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में, अब ये दूसरा बीच का एक दूसरी इबारत लेके आए कि मौलाना ये, तो मौलाना उस इबारत की अपनी तैयारी करके इसका खुलासा एक मिनट, जिस तरह तुमने बोला इसी तरह बहुत सारे मौजूद है, बहुत सारे मसाइल है, अलग अलग उलमा ने अपनी अपनी किताब मिले, उसको समझना ज़रूरी है। तुम इनके सामने स्कैन रखो कि मौलाना आपकी ये किताब में ये मसला आया तो आया कैसे, अब मौलाना उसकी पूरी डिटेल निकालेंगी कि भाई ये अब आ जाओ इस इबारत के सामने अपने बैठ जाओ, तो कोई चीज़ का हल निकलेगा। अब जहाँ तक मौलाना इसका खुलासा करेंगे दूसरी बात लेके आएंगे कि देखो उसमें ऐसा मसला लिखा, तो मौलाना जैसे बताया कि जिना की बहुत सारी किस्में हैं, तुम बीच में से वो किस्में लाओगे तो वो मसला हल नहीं निकल, मसला हल नहीं निकलना। अभी जिसके मौजू के ऊपर शेर खान भाई ने बिल्कुल तमाशा बना दिया व्हाट्सएप के ऊपर, और बिलाल भाई ने बोला कि कैसे आलिम है, इतने बड़े हमारे आलिम के बारे में अल्फाज थे, कैसे आलिम है। तो जब इनको ये मौजू और ये जो इबारत पे खटक रही है तो उसका खुलासा तो करे। तुमने ये कहा कैसे आलिम है, तो हमारा आलिम ने सही लिखा कि गलत लिखा, इसका खुलासा मौलाना करने बैठे बोल रहा हूँ। अब उसके बाद जो भी इबारत आपको एतराज़ लग रही उसका स्कैन करो। ऐसे बहुत सारे मैं सवाल करूँ तो बिलाल भाई क्या बोले, मेरी इसकी तैयारी नहीं। हाँ भाई करो बात, हम लोग की किताबों से करो भाई, हम लोग की किताबों से अभी करो, छेड़ दूंगा ना अभी बात, छेड़ भाई, नहीं छेड़ो भाई, छेड़ो भाई, मेरे नहीं करना भाई हम लोग, मैं तो कहता हूँ हम लोग के आलिम पे तुम कहोगे तो हम उसका डिफेंस करने थोड़ी आएंगे, हम उसकी थोड़ी हम उसकी तारीफ करेंगे भाई। मैं भी कर सकता हूँ, सुनो बात को मत वो उल्टा बोल रहा भाई, हम लोग की कोई इबारत के लिए आए हैं, अभी उस पर आपने खुलासा करो, क्यों नहीं करे, बस वो खुलासा करो। मैं खुलासा क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वजह बता दी भाई, मैंने वजह। अच्छा मुफ्ती मुनीर साहब बोल रहे कि जिना की गुजारी वाली अलग किस्म है और वो वाली अलग किस्म है, तुम वो मसला भी ले लो, वो दोनों किस्म पता मुझे बात अलग अलग बैठक में लो। अरे जिना है ना, अब जिना ये है, जिना तो देखो मौलाना बिलाल साहब, आपको मैं साफ बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप आलिम में आपको पता होना चाहिए कि जिस फतवा आलमगीरी के जिस स्कैन पेज को लेकर आज हमारी मीटिंग हो रही है उसके 1 और 2 पेज ऊपर ही लिखा हुआ है कि जिना आम, जिना बिशुबहा और शुबहात कितनी किस्म के होते हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर ऊपर के पेज पे सब लिखी हुई है। हद कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आपको पता है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जिना आम है? जिना की मुख्तलिफ किस्में हैं और अलग अलग किस्मों पर अलग अलग अहकामात लागू पड़ते हैं। और ये सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है, हदीसों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जिना हुआ और हद नहीं लगी। मैं बताऊँगा आज, आप बताओ, लेकिन आप इसमें आज मैं वही बोल रहा हूँ, जिना मैं वापस हो जाऊंगा, ये भी जिना का मसला है, इजारे वाला आपके कहने के मुताबिक वो अलग है, दूसरा मसला भी जिना का है, लेकिन उस पर तो आप तो जिना के ताल्लुक तैयारी करेंगे, जिना की कितनी किस्म होती है, किस पे हद लगती है, किस पे हद नहीं लगती है, तो उस मसले की बात करें पहले। आप इजारे वाले मतलब हाँ मीटिंग में फायदा नहीं होगा, बात इधर फायदा नहीं, 4 को समझ में नहीं आएगा। एक टॉपिक ले लो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात, एक टॉपिक लो, सबको समझ बात जब भी उन्होंने एक का खुलासा भाई कोई फायदा ही नहीं होगा, चाहे हम 5 घंटे बैठ जाए ना इस तरह आम टॉपिक पे इधर से उधर उधर से इधर, कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर फिर नहीं करना, इन्होंने एक एक स्टेप बाय स्टेप यानी आज ये साबित हो जाएगा कि ये मसला फतवा आलमगीरी का अपनी जगह सही है गलत, ये सही है गलत है भाई। आपने जिना के तमाम किस्म की तैयारी कर ली ना कि शिबा से जिना और उस पर कोई और अल्लाह के नबी की मैं सिर्फ यहाँ पे फतवा आलमगीरी की स्कैन पेज पर शैतान लगा जवाब देना आया हूँ। वो भी उन्होंने ये कहा कि फिक़्ह हनफी में जिना की इजाज़त, अगर वो जिना के में लिखा हुआ तो इजाजत है तो आओ मुझसे मैं कहूँगा आपको कि यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करो कि आपने हद नहीं लगाई, यही सवाल उमर फारूक पे करो कि उन्होंने हद नहीं लगाई। आज मैं ये साबित करूँगा हदीसों की किताब से। तो आप भी ये खुल्लम खुल्ला साबित कर दो कि अगर कोई हनफी मज़हब में जिना करता तो हद नहीं होगी, क्योंकि उमर ने हद नहीं लगाई, अल्लाह के नबी तो आप आम जिना बोल रहे हैं, मसला अलग है, तो इसलिए मैं बात या शक्ल अलग है। अरे मैं बोलूंगा जिस
इबारत पर तुमको एतराज है उसका खुलासा करो। जिस पर ऐसा तो इनको एतराज है तो उसका खुलासा करना ही है। अब दूसरे दूसरी मैं एक बात बताऊँ तुमको, एक सिंपल सी बात है। यहाँ एक लड़का और लड़की ने आम दोनों अजनबी ज़िना करा। इस्लाम ये कहता है कि दोनों पे हाथ लगेगी, शादीशुदा गैर शादीशुदा कुरान का मतलब दोनों पे हाथ लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो शक्ल है ना ज़िना की वो पूरी अलग है। ये पूरी शक्ल ये आम वाली शक्ल नहीं है। यहाँ पे तो एक औरत को उजरत पे लेना है, ये कहना है कि इतने दे रहा हूँ तू मुझे तेरे पे काबू दे, इतने दे रहा हूँ तू मुझे तेरे पे काबू दे। अब ये शक्ल शरीयत में क्या बनती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा वाक़या पेश आया है, सहाबा के दौर में ऐसा वाक़या पेश आया है, तो आपने क्या फैसला किया? तो किताब मौजूद है, हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ आपके सवाल के जवाब देने के लिए हम जमा नहीं हो। यहाँ बात जो शेर खान भाई के सवाल था उस पर बात होगी, आपको फैसला उस वक्त इनको दर्ज करना चाहिए ना। नहीं मौलाना मेरी बात सुनिए, आप शेर खान भाई के सवाल ही पर आपको तय किया गया, आपको फैसला बनाया था। आपने कहा अल्लाह के बंदो ऐसी बात नहीं है। आपने क्या कहा था कि देखो शेर खान भाई का जो मौजूद मैंने उसमें आपको फैसला तय किया। आपने कहा देखो अब्दुल मेरे को ये मसला समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब ठीक है वादा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मुत्तकलीम आप रहोगे। मैंने आपको इन्वॉल्व करा इसके अंदर कि मुत्तकलीम आप रहोगे और इंशाल्लाह बैठ के इसका खुलासा करेंगे, यही मसले का। मौलाना और कोई दूसरी बात भी नहीं है उस रिकॉर्डिंग में मौलाना। आप बोलो देखो फैसला आपने छेड़ा, आप ये कह रहे थे जो मैंने उर्दू सुनाई ना कि देखो मैं तुमको मौका देता हूँ, तुम सबको जमा करो, हमारी जानिब से 4 आएंगे, तुम्हारी जानिब से ज़्यादा आने चाहिए ताकि सब पब्लिक को पता चले कि ठीक है तुम्हें गंदा मसला है। आप बात करो इसमें। अच्छा मुफ्ती साहब अपने काम करें। हाँ इंशाअल्लाह आते इतवार के दिन अपने से बैठा करें और जितने मसाइल ज़िना के हैं वो आपके आगे पेश करेंगे। ज़िना ये आने से पहले उसके सब समझो 2-3 दिन पहले हम तुम्हारा सब स्कैन भिजा देंगे जिसके ऊपर हमारे सवाल है। आप ये बता रहे हो हम वो सब दे देंगे आपको। लेकिन बात तो सुनो आप पूरी करो। आप बता रहे हो कि ज़िना के तारुक से बात कर रही है, मौजूद से हटना नहीं है। हिदायत दुर्र मुख्तार फतवा आलमगीरी की है और जो भी आपकी मुअत्तर किताब है उसके स्कैन पहले आपको भिजा देंगे, 3-4 दिन पहले भिजा देंगे और बात उससे बाहर नहीं करेंगे। जो स्कैन दिए सिर्फ उसी में बात होगी, उससे हट के हम दूसरी को दलील नहीं देंगे। और 3-4 दिन पहले आप भी हमारे वो स्कैन दे दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अंदर जो ज़िना ऐसे ऐसे होते थे उस पर हद नहीं थी, वो स्कैन आप हमारे को दे दो। हम दे आप दे दो या आप दे देंगे तो उसके सामने हम दे देंगे। आते इतवार वो बात कर लेते। अगर आते इतवार तक नहीं हुआ, आते इतवार तक नहीं हुआ तो दोनों की रजामंदी से इसके बाद का इतवार जब आप तय करोगे उसको फिर कर देते। ठीक, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी तरतीब ये रहेगी कि हर हफ्ते जब भी हमारी बैठक हो एक ही टॉपिक रहेगा, एक ही मसला रहेगा, या हिदायत का या फतवा आलमगीरी का या कोई भी एक किताब का। बात इधर से एक मजलिस में 2 सवाल नहीं होंगे, एक मजलिस में 3 सवाल। आप ये कहो कि भाई ज़िना का मसला है, फतवा आलमगीरी ली, फिर वहाँ से हम हिदायत पे भी कुछ इश्काल है वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम शरह वक़ाया पे भी इश्काल है वहाँ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इसकी जो भी हम आइंदा आपको इतवार के दिन जिस पर बात है उसका हम आपको स्कैन दे देते, आपको स्कैन हमारे को दे देना है कि हदीस ये बोल रहे हैं कि एक ही सफा एक ही मसला है। वो इनका दे देंगे ना अपने। भाई नहीं, मेरी बात सवाल आपको करना है, सवाल आपको करना है सवाल और आप मुझे करोगे। जवाब देना है तो मैं तो मजलिस में जवाब दूंगा, पहले से नहीं दूंगा तो फिर मजलिस का जवाब मतलब ही क्या? हाँ तो वही तो हम भी सवाल मजलिस में करेंगे, फिर हम भी सवाल मजलिस में करेंगे। टॉपिक नहीं लेने का मौलाना खुल्ला आप साहब ये जो हिदाया है या जो भी आलमगीरी है उसके किताब का जो इबारत है मौलाना को स्कैन करो। मौलाना ये इबारत में हमको इस्काल है, आपको इसी मौजू पर बैठना पड़ेगा, तो मौलाना उसके ताल्लुक से आपके सामने बैठेंगे। अब आपको बीच में से निकाल के देखो तुम्हारी हिदायत के अंदर ज़िना का मसला दूसरी किताब पे नहीं जाएंगे, जिस किताब के अंदर और जिस इबारत में तुमको इस्काल है उसी का मसला हल करना पड़ेगा। देखो मैं साफ बात एक बता दूँ, जैसे कि आज का इश्काल जो था ना ये इस पेज में। अब अगर तुमको इश्काल इसी बाब से है, मान लो कि ये यहाँ से बाब शुरू हो रहा है, आगे से यहाँ से बाब शुरू हो रहा है, अब इनका इश्काल इसी मौजू से आगे पीछे है, तब तो हम तैयार हैं, तब तो हम जवाब दें। लेकिन आप फिर दूसरे बाब में चले जाएंगे, नहीं तो फिर अलग अलग बाब कायम करने की क्या जरूरत है? आपको पता होना चाहिए कि किताब तलाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिस बाब कायम करते हैं तो उसके मातहत में छोटे छोटे बाब कायम करते हैं। भाई तलाक की ये शक्ल, तलाक की ये शक्ल, तलाक की, तो हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे, हम आम नहीं रख देंगे, इसमें खलत मुलत हो जाएगा, ये मसला होगा कि किसी बैठने वाले को फ़ायदा नहीं होगा, हमारी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे 2 घंटे बहस होगी कोई फायदा नहीं। ये जो उस इबादत पे हम बैठे हैं सबका टाइम मिल रहा है,
आगे तो जो भी हाँ तो भाई वो इबारत चल रही थोड़ी, वो चल रही थोड़ी, क्यों चलेगी? मना पूरा करे तो मैं थाने पूरा मुकम्मल क्या करूँ भाई? जिस इबारत पर तू यहाँ बोल रहा है कि हमारे आलिम में से हैं, आलूमा बोल रहा तो भाई मेरी वो दूसरी बात भी थी, मैं दूसरा मसला साबित करूँगा दूसरी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ दूसरी बात मैं साबित करूँगा। जब शेर खान भाई ने ये मसला उछाला और ये स्क्रीन डाल के व्हाट्सएप पे सब चलाया कि देखो इतना गंदा लिखा है, वहाँ उसके साथ में दूसरी बात क्यों नहीं बोली कि ये गंदा दूसरे मसले की वजह से, वहाँ ये नहीं बोले कि ये गंदा दूसरे मसले की वजह से। दूसरे मसले में लिखा कि जिना पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कोई हद नहीं लगाई है और शरह में इमाम ने कौल को तरजीह नहीं गई है। अब भाई उसका मैं उसने अच्छा मैं इनको कहा था कि इंशाल्लाह बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा, अभी इनको फोन पे बता दूं कि ये मसला करेंगे हम। तू आलिम है, मेरी बात सुन। आलिम तो भैया भी है, आलिम तो मैं निजाम भी है। तू इस मौलाना ने एक मिनट सुन ले, आलिम है, बोल रहा क्या बोले कि जिना की कितनी किस्में हैं इसी किताब में ऊपर लिख देगी, तो आलिम का हक बनता है कि इसमें किस्में देखे, उसके बाद में उस इबारत को पढ़े, उसके बाद में इसकाल करे, उसके बाद में फतवा लगा कि तुम्हारे आलिम ने ये बात क्यों गलत लिखी। क्योंकि मैं और आप तो जाहिल, एक बात समझो, हम ये मसला नहीं समझ सकते। आलिम का हक है पहले पूरी इंडेक्स पड़ेगा कि हाँ इसमें ऐसी ऐसी किस्में होती हैं और ऐसे ऐसे मसाइल रहते, उसके बाद में उस इबारत को पढ़े, फिर आलिम के ऊपर इसकाल करें। ये चीज़ होना चाहिए। समझा तुम्हारी बात इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये आज का मसला है फतवा आलम की, बराबर, कि भाई औरत को इजारे पे लिया, उजरत पे लिया। अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप जैसे बात करना है आप एक आलिम है, चलो मान लेता हूँ कि शेरखान भाई इनको उर्दू आता है तो इनको इन्होंने सिर्फ ये पढ़ा तो इनके जहन में इश्काल आया, इनको ये नहीं पता कि दीगर अरबी किताबों में क्या लिखा है। लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मसला इज्तिहादी है या नहीं। इससे पहले इस किताब में लिखे जाने से पहले अइम्मा मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन में इस मसले को लेकर इख्तिलाफ हुआ है नहीं, किसी और की कुछ राय है या नहीं। तो फिर अगर ऐसा था मतलब कि आपके कहने के मुताबिक ये किताब मतलब हम जाहिल नहीं पढ़ सकते, फिर उर्दू में ट्रांसलेट क्यों किया इसका? उर्दू में कोई भी एक आम इंसान पढ़ेगा इसको तो ये इसमें इश्काल ये इसके दिमाग में आएंगे। आप कहते शेरखान भाई को अरबी नहीं आती, वो उर्दू में जो भी इनके दिमाग में आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि मतलब किताब जाहिलों की नहीं आलिमों की है, तो फिर उर्दू में ट्रांसलेट क्यों किया गया? मैं आपको एक बात बताऊँ, आज डॉक्टरेट की, इंजीनियर की, सबकी किताबें हर मादरी भाषा में गुजराती में ही मौजूद है। किसी भी आम साथी ने डॉक्टरेट की किताब गुजराती में ले ली, अब उसको वो पढ़ेगा, इसका मतलब ये गुजराती इसलिए क्या गया कि जाहिलों को समझ में आनी चाहिए। अब किताबों में जन्नत और जहन्नम डिपेंड नहीं है। मैं तो एक बात बोलूँ, बिल्कुल कायदे की बात बोल रहा हूँ, सब अगर टाइप करना मेरी बात की अगर गलत हो तो मैं बोल रहा कि आप सवाल करने आए हैं, बराबर, तो आप अपना एक सवाल करो, आप एक किताब से एक सवाल करो, ये कुरान से, हदीस से, बुजुर्गों के अक़वाल से, सहाबा के अक़वाल से, अफ़ाल से, कहीं से भी हो, वो 5 किताब से 50 किताब से जवाब देने का हक रखते हैं। आप सवाल करो, आप उनके सवाल का आप मुतमईन नहीं होते हैं, उनके सवाल पे आपने अगर कोई गिरफ्त करी है तो वो गिरफ्त उनको तो पता होगा कि आपके सवाल में ये। हाँ मैं सवाल करूँगा, लेकिन अभी इसमें जिना का तुम लोग एक ही मसला, फिलहाल आप उनको सवाल करो, वो जवाब क्या देते हैं आपको तो देखो, आप एक सवाल करो, वो 50 किताब से जवाब दें उनको। अच्छा एक मिनट और बात सुनो, ये बात तो ये बिलाल आपने शायद वो ऑडियो नहीं सुनी होगी, इसके सुना दो। सबसे पहले जो बात शुरू हुई वो ऑडियो पे हुई, उसके बाद इन्होंने स्कैन भेजा, बात उसको होनी चाहिए, फिर आपने खयानत से काम किया, उसके बाद क्या इनकी जो शेरखान भाई चलाई जो बात है वही इनको समझा, वही मैंने भी शेरखान भाई को दिखाया था, वही ऐसे बात नहीं हो इबारत को चलाई नहीं, क्या सोच के चलाई, ये सोच के चला, मैं ये बता दूं आपने पहले से ही सोच लिया, इसका मैं आगे बता भैया हमने क्या होता है इसका भाई आजान का भाई आज क्यों अब यहाँ है ये मैं बोल रहा हूँ, तो भाई अगले रही बात को कोई मौजूद ये अपनी किताब पे इस्तेमाल करें, पहले दिन किताब पे जो गलत लिखा अपनी की किताब पे इस्तेमाल करते हैं, अपने ना इसे स्क्रीन मांगे नहीं, हमसे स्क्रीन मांगे, बस इस पे बात कर लो, ये मतलब क्यों मतलब बोले भाई भाई सिंपल खुलासा करो जो तुमने खुलासा करो। अभी साहिबीन का मसला दिखाएंगे आपको जो उन्होंने बताया गया है, बस अब दूसरी जगह के ऊपर तुमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुझे ज़हन साफ कर लो कि मैं ये जवाब देके नहीं छूटूंगा कि साहिबीन मेरे से गाने इसके हम छूट ले, मैं हदीस पढ़ूंगा नबी ज़माने में हुआ दीगर मसाइल में ना समझो ये कह के हट जाऊंगा कि हमारा तो इमाम साहब ने गलत कहा
खान भाई ने जो सवाल करा है उसी सवाल के मौजूद पर सब बैठक हुई, तो इसी चीज का खुलासा करने के लिए सब लोग गए। ये इबारत व्हाट्सएप पे बगैर तहकीक इन्होंने चलाई कैसे, और हजरत बिलाल ने ये अल्फाज कहे कि तुम्हारे आलिम कैसे है भाई बात ये, तो इसका खुलासा ये क्यों नहीं कर रहे? बता रहे नहीं है इन्होंने बात की जो आप देख रहे हो समाज सब क्या करना है बताओ। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये बोल रहे हैं कि जिना की अलग अलग किस्में, इसलिए कोई भी एक मसला लिया जाए, कोई भी हिसाब। अभी इनको ये कहा जा रहा है कि आपकी किताबों में जो जिना के मसले अगले एक बार उस पर बात कर लेते, बोले नहीं हर हफ्ते एक मसला लिया जाएगा। तो इससे अच्छा भाई ये है कि अगले इस बार को हम लोग की जो किताब में गलत सलाह मसाले इनके कहने के मुताबिक ये उसको रद्द करें, और अगले इस बार को हम इनकी किताबों से इनके जो गलत सलत मसाले जिना वाले हम उसको रद्द करेंगे। बस यहाँ सिंपल है। ये बात की है, आज जो हम जिस लिए जमा हुए हैं उस पर पहले बात पूरी करो। ये बात की बात ना करो कि आइंदा हम ये करेंगे ना वो करेंगे। आज क्यों हम यहाँ आए? अच्छा ठीक है, आज हम ये बात मुकम्मल कर लेते, अगले इस बार को मुफ्ती मिनिस्टर तैयार हो जाए। हम तैयार नहीं है मुकम्मल करने के लिए, हम तो ये आलमगीरी का जवाब देने के लिए आज हम कर लेते हैं। अगले आप आज के लिए भाग रहे हो, बोलो भाई, देखो कोई मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई हमने कुछ चलाया नहीं भाई, और इनसे जो बात हुई थी मेरे सवाल थे, मेरे सवाल में जवाब नहीं ऐसी मेरे पास मेरी बात सुन लो आप, बोल बात को कर रहे हो। शेरखान भाई की बात की, शेरखान भाई की मेरी बात चल रही थी, आप उसमें कैसे होते हैं, और शेरखान भाई की बात में मैंने कहा मौलाना बिलाल साहब आप फैसला करें कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। मतलब आपने क्या कहा ललित भाई, मुझे वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है हद नहीं है, हद नहीं मानी जाएगी, तो नीचे लिखा में लिखा हुआ, तो वो कौन सा मसला है, क्या है, मतलब समझना चाहता हूँ पूरी बात। तो उसी पर बातें हो गई थी, उसी आज फिर बाद में फोन क्या बात हुई। एक बात सुनो, आपने अगर फोन करा तो दूसरा और कोई मसले के लिए फोन करा था, कौन से आपने? भाई मैंने यही कहा था कि भाई के ऐसे किस तरह बैठना है, कैसे बैठना, तो आपने कहा मुतकल्लिम आप होंगे, तो शेख खान को बोलना तो वही है कि इसी मौजूद में इनको बनाया ना आपने, एक मिनट इसी मौजूद सुनिए मेरा मौजूद सुनिए भाई, सुनो फैसले इनको बनाया था, साथ में इन्होंने लास्ट में ये बात भी कही थी, तो रमेश भाई मैं हिसाब कैसे करूँ, बल्कि इसमें तो ये साफ जीना है, आम इंसान भी बोलेगा ये साफ जीना है, उसमें लिखा हद नहीं है। यानी ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कि फरमाना रसूल मिशकात शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली की, कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, और फिर साथ में फरमाया कि वह निकाह हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन, तो उसका निकाह बातिल है। और फिर कहा कि अगर शोहर ने वती कर ली, देखना निकाह बातिल हो गया तो क्या हो रहा है, ज़िना हो रहा है ना। शोहर ने वती कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको महरे मिस्ल औरत को देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ज़िना हुआ नबी के ज़माने में, लेकिन हद नहीं लगी। ज़िना हुआ है, अल्लाह के नबी फरमाते निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, ज़िना हुआ, और अल्लाह के नबी फरमाते महर देनी पड़ेगी, हद नहीं लगी। नहीं मेरी बात सुनो, अब यानी अब आपका इश्काल ऐसा हुआ जैसे पता आलमगीरी कि भाई यहाँ तो साफ ज़िना है फिर भी हद नहीं लग रही है, तो आप हदीस के बारे में इनको साफ ज़िना है फिर भी भाई अल्लाह के नबी, भाई अल्लाह के नबी के ताल्लुक से हमें यकीन है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, और बाकी अल्लाह के नबी के बाद कोई ऐसी शख्सियत है जो अपने मतलब जिसका हम ऐसा अल्लाह के नबी जैसा इस्तेमाल कर ले। अल्लाह बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि जिस आलिम ने फतवा आलमगीरी में जिस इमाम ने मुज्तहिद ने मसला लिखा है, हो सकता है कि वो मुझसे इल्म में ज़्यादा हो सकता है कि समझने में मेरी मिस्टेक हो, मैं किसी बड़ा आलिम पास जाऊँ, मैं किसी अहले इल्म पास जाकर समझूँ कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए, डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि साफ ज़िना है, तो भाई आपको पता होना चाहिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में ये हुआ, हज़रत खौला बिन्त हकीम आई और आके ये कहा हे अल्लाह के नबी फलाने उमैया इब्ने उमैया ने उस औरत के साथ में ज़िना क्या ज़िना, मुता क्या मुता, ये कहा। हज़रत उमर परेशान, चादर खींची और दौड़ के उसके पास भागे और जाके कहते हैं अल्लाह की कसम अगर आज मैं मुता को हराम नहीं करता तो तुझे रज्म कर देता, हद लगाता, हद नहीं लगा। ज़िना हुआ हज़रत उमर ने हद नहीं लगा, ये कहो ना कि उसमें भी हद नहीं लगेगी, कहो कि हद नहीं लगेगी। अब आप जैसे कह रहे हूँ दिन अपने हदीसों को पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, देखो हज़रत उमर कुरान में ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा कि ज़िना की हद है, और आप कहेंगे हज़रत उमर देखो नबी के खिलाफ कुरान के खिलाफ हद नहीं लगा रहे। जैसा कि आप फिक्र हनफी पे एतराज़ करते हो वैसा साहबा पे भी आप करोगे, इसलिए कि आप ऊपर लिख रहे हैं कि मतलब इजारे पर लिया तो कोई हद नहीं है, उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस भी पेश कर रहे हो, फिर बाद में ऐसा भी करके साहिब ने कहा हद है, फिर उसको जवाब भी सवाल दे रहा हूँ, और असल में मसला तो अभी बाकी है, क्या हम लोगों का मसला क्या है, ठीक है,
फ़िक़्ह हनफी में ये मसला क्या है, फ़िक़्ह हनफी में हद है या नहीं? आप लिखे गए कि हनफियों के लिखे गए, ज़ईफ़ कुल भी लिखे गए, सब लिखे गए, लेकिन एक आलिम फैसला करेगा कि इसमें मुफ्तबी कुल कौन है, और उसके लिए उसके दूसरी किताबों का इल्म होना पढ़ना जरूरी है। हाँ तो वो ना फतवा आलमगीरी में रख लेते, जो भी जिना की मसाइल फतवा आलमगीरी आप नाम क्यों रख रहे हैं? भाई जो भी का मसला में आप कर अभी मैंने साफ बोला, चाहे वो इजारे में हो, चाहे वो शिवा से हुए हो, शिवा से भी बात कर देखो मौलाना, अभी मैंने साफ बोला, कुरान करीम में अज़ानी को ज़ानी फंजिदु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मिअतन, साफ आम हद ज़िना की कि भाई ज़ानी और ज़िना को मुज़निया को हद लगाई जाएगी। अब मैंने जो हदीसें पढ़ी उसमें हद नहीं लगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। अब देखो साफ ज़ाहिर हुआ ज़िना की किस्में अलग, ज़िना तो वहाँ भी हज़रत उमर मान रहे हैं लेकिन हद नहीं लगा रहे हैं। कुरान कह रहा है कि ज़ानी पे हद है। पता चला कि ज़िना की कुछ ऐसा ज़िना कि जहाँ तशाबुह हो, जहाँ ज़िना बिल मुशाबे हो, किसी दूसरे जायज़ अक़्द की मुशाबियत लाजिम आती हो तो वहाँ हद नहीं लगेगी, वहाँ सज़ा होगी। और जिस मसले को लेकर आप आए वहीं आगे लिखा है कि उन दोनों को सज़ा दी जाएगी, उन दोनों को महबूस कैद किया जाएगा। इमाम अबू हनीफा का जब कौल है ना, अच्छा जिना तो दीगर भी जिना के मसाइल में आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अरे जैसे कि ये मसला आम जिना से अलग हो गया, ये इजारे वाला मसला है, इस तरह किस्म बदल जाएगी, मुता वाला वली के बगैर आपके नज़दीक वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होगी। नहीं मैं टॉपिक नहीं ले जा रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप कह रहा हूँ आम जिना पे बात करें। अब एक सिंपल सी बात है कि आप लोगों के नज़दीक वली ने अगर इजाज़त नहीं दी, लड़का और लड़की अपनी मर्जी से भाग गए, कोर्ट में निकाह कर लिया तो इनके नज़दीक निकाह नहीं होगा। देखना अब वो दोनों हम बिस्तरी करेंगे तो क्या होगा, जिना आपके नज़दीक हद है उन दोनों पे। ये दूसरा मसला है, बोल रहे हो जिना की किस्म दूसरी जगह गए इनके नज़दीक भी हद नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते आप इसको भी ले लो और हम ले लेते हैं, आप ले लो इसको। आप इसी आपने कहा कि हमारे नजदीक पर बिगैर वली के नहीं है और वो जिना आपको कोई हद नहीं है, आप इस मसले को ले लो अगले हफ्ते, बाकी हम मसले ले लेंगे। नहीं इस तरह कोई फायदा नहीं होगा। एक भाई तो एक मसला लो, बाप का मसला लो, मैं हम इस पे दोनों खुल के बात करते हैं। आइंदा फिर दूसरी किताब लो, इसका मसला लो। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका सवाल रह गया है, आइंदा आपको मौका मिलेगा ना, आप उसमें वीडियो हो रहा है, आप बोलो कि भाई पिछले हफ्ते हम आए थे और हमको ये मौलाना ने ये जवाब दिया था, जबकि उनका ये जवाब गलत था और साथ में ये चीज़ रह गई थी। आप पलट कर सवाल करो, ऐसा नहीं काम आपको, आपकी बारे में तो आप बोलेंगे, हमारी बारे में बोलेंगे, लेकिन आप टॉपिक एक ही रहेगा, कोई भी एक किताब का टॉपिक। भाई देखो यहाँ नमाज वाले जो 15 घंटा बाकी है, इससे पहले निपटा दे भाई, जो भी हो वो इससे पहले निपटा दे, ताकि पहचान का वक्त हो जाएगा, आगे बात नहीं होगी इसमें। यही भाई यही चीज का भाई मानी बिना तो दूसरी बात हुई थी, यही बात भाई मैंने कहा था, मेरे सवाल आपसे कब हुआ शेर खान भाई की इस मुलाकात से, और आपने फोन किया इसी नाम से फोन किया ठीक है भाई ठीक है भाई बुला दो बराबर इसी मौजूद के मतलब हम मुलाकात रखता हुआ और आपने कहा कि भाई मेरा कुछ मतलब कुछ सवाल पूछने हो तो मैंने क्या कहा था खबर कि मुझे फिर आप आलिम से आलिम हो, आलिम सामने बैठ जाना और जो भी आपके साथ बात नहीं की वीडियो ये ऑडियो बात नहीं की थी, तो देखो मैंने कहा सुन लो भाई सुन लो, सुनाओ तो सही चलो। पहले जिस मौजू के ऊपर तुमने इनको फैसल भाई वो मौजू अरे भाई कोई टाइम पे हमारी मौजू भी और वो जो भाई मैंने कहा मेरे सवाल आते हैं उसको आपके साथ गुना की, लेकिन फिलहाल भाई सवाल अभी तो खाली एक सवाल पे बात होगी, आपके जो सवाल तो दूसरे हफ्ते में होंगे, ऐसा आपको बात रखनी है। आपकी और मेरी मुलाकात और फोन का रास्ता जो हुआ ना वो इसी मसले पर हुआ है और मैंने आपने मेरी बात सुना, ये शेर खान भाई का चैलेंज हमने कबूल करा, शेर खान भाई का चैलेंज हमने कबूल करा और मैंने कहा कि मौलाना शेर खान भाई आपका चैलेंज मुझे कबूल है, और फिर मैंने कहा कि मौलाना बिलाल को साथ में लेना, और मैंने आपको इनके बारे में कहा भी था कि देखो भाई एक जोहला से बेहतर एक आलिम होता है बराबर, और शेर खान भाई मजलिस में अगर बैठेंगे भी तो कोई कह के छूट जाएंगे कि भाई मैं जाहिल हूँ, मैं तहकीक करके बताऊँगा, लेकिन आप आलिम मौजूद रहोगे ना तो इंशाल्लाह आप ये नहीं कहोगे कि भाई मैं बाद में तहकीक करके बताऊँगा, ये जुमले मैंने आपसे कह रहा ठीक है बोला रेवा के नाऊँगा, मैंने कहा ये जुमले देखो आप रिकॉर्डिंग सुन बताओ, सुनाओ मेरे को पॉइंट बताओ मेरे को।
वॉल्यूम तो कर फिलहाल फूल लगा भाई फूल लगा वॉल्यूम कर दो तो आप इल्म वाले हो इसलिए आप उसका खुलासा कर दो। अच्छा भाई मान लो एक डाइट ये सकता है कि मुझे मतलब खेल नहीं सकेगा आलिम हर बात दूसरी बात तो आपने मतलब खेल नहीं था आपने वो बात भाई मेरा ऐसा नहीं मौलाना देखो मेरी बात सुनो मैं आपको मेरा मकसद अल्लाह जानता है बेटर अल्लाह के सामने मेरा मकसद आपको जलील करना या आपसे कोई ऐसी इज्जत करना वो मेरा मकसद है ही नहीं। बात ये हुई थी कि भाई फ़िका हनफी लोग पे इजमा हो गया यानी 4 इमाम पे इजमा हो गया, ये बात थी। तो मैंने कहा इसके ऊपर इजमा हुआ है, इस पर बहुत सी गलत और ख़राब बातें हैं। मैंने ये कहा उसके अंदर ख़राब बातों में सिर्फ मिसाल के तौर पर मैंने ये बात रखी वहाँ। तो वो खराब बात अपने उनके सामने पेश करो। अब तुमने क्या जवाब दे दिया? अगर वो जवाब में अपने को कुछ गिरफ्त होती है तो वो करो ना गिरफ्त। तो वही बोलता जिना के ताल्लुक से बात हुई थी तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल में मैंने उनको दिया। अब वो दूसरा मौका तो उनके आगे क्या क्या ऑडियो में देखना पड़ेगा। तो सिर्फ जिना के ताल्लुक से और फ़िका हनफी मौजू हटा नहीं है, सिर्फ जिना के ताल्लुक से और फ़िका हनफी की मदबर और मुसल्लमा किताब उसी की चीज़ हम पेश कर रहे हैं। मैं वही तो कहना चाह तो ये मौलाना इमाम अपने मुफ्ती साहब बोलते सिर्फ एक ही इबारत पेश कर रहे हैं। मुझे इस बात का खतरा पहले से था कि ये इस तरह होगा। मैंने खुद मैंने आज मैं राज पास करता हूँ, मैंने अपने हाथों से आर्टिकल बना कर अब्दुल हमीद भाई को डाला कि देखो ये आर्टिकल ग्रुप में डाल दो, हमारी टॉपिक मजलिस का मौजू फतावा आलमगीरी का ये स्केच पेज रहेगा, इसके आगे पीछे कई बात नहीं है। तो इनको डाला उस इबारत में एतराज है तुम कि ये इबारत तुमने चलाई और ये तो इतने गंदे सब बातें आ जाएंगी। गंदा तुमने इस इबारत जब तक कुरान कहता है कि तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से सीख लो। तुम्हारा मसला ये था, हक तो ये देखो बुरा मत करना, अल्लाह की नबी ने हदीस का बात है चाहे बच्चे सीख रहे तुम्हारा हक बनता है कि चलो मैं हनफी आलिम से समझूँ कि ये मसला क्या कहता है। हक तो ये होता है, इंसाफ तो यही होता है। अब तुमने तो चला हमारी सर्किट में नवे नवे छोकरे पकड़ लिए, अरे देखो इनकी किताब है, अरे इनकी किताब है, तुम्हारी तारीफ करने वाले बहुत सारे होंगे, अरे तुम्हारे मौलाना कैसे। तो तुमने ये इबारत किसी सही आलिम से समझना चाहिए, तुम्हारा हक तो ये बनता है। सर खींच के बता रहा तुमने चलाई कैसे व्हाट्सएप में हमारे आलिम तुम कह दोगे ना। हम ये कहते हैं, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि आप उनसे सवाल करो, उनके सवाल में गिरफ्त करो ना। ये इबारत में गंदी बात नहीं, उसको समझो तो खरी, इस बात को समझो। तुमने कह दिया गंदा, कैसे गंदा कह दिया उसको समझना तो पड़ेगा। कुरान कहता है इल्म वालों से सीख लो। फिर तुम ये तो क्या हो गया मालूम है, जहाँ अपनी बात अटक जाती है बस जाती है दूसरी बात। मेरी बात आपकी बात जो भी है, लेकिन अगर जो इस बात करने वाला है ना एक टॉपिक पे शेर खान भाई, शेर खान भाई ने वहाँ तो कुछ आपकी तो फोन पे इनसे इंफरादी बात हुई, लेकिन शेर खान भाई ने ग्रुप में सबको बोला है, ग्रुप में सबको बोला है कि मैं फतावा आलमगीरी के अंदर जो लिखा है ना कि फिल्म के अंदर सीना और इस पर कोई हद नहीं है, बोले इस मसले पे बात करने के लिए आ रहूँगा। और इनको ताना भी दिया है और ये कहा है कि तुम यूँ तो मेरे पास दूसरे मसलों पे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम निकलते बहुत आ जाता हो, ये मसले भी क्यों नहीं, तुम्हारी जगह और मैं आऊँगा किताब लेके, ये बोला है। और यूँ कहा है कि तुम जितनों को बुला सकते हो बुलाओ, कि मैं सबको बताऊँगा कि हनफियों की किताब में क्या लिखा है। इससे जरा भी मत घबराओ, जरा भी टेंशन में मत आओ, जो भी बात है। और फिर आपको डर क्या है, झूठ तो हमारा पकड़ाएगा ना, अल्लाह की लानत झूठों पे होगी, झूठ हमारा पकड़ाएगा तुम्हारे कहने के मुताबिक। तो आप क्यों घबरा रहे हो, आपके पास सब चीज़ का वक्त है। आप मेरे पास आए, ये करा वो करा, सब चीज़ के लिए वक्त है। और अब ये टाइम आया था, आधे घंटे का वक्त नहीं। अच्छा मैं अपनी जगह पे नहीं बुला रहा हूँ, मैं आपके ठिकाने पर आऊँगा, किताब दिखाऊंगा, कोई जात का मुनाजरा नहीं, खाली की इबारत दिखाऊंगा, उसको आपके पढ़ना, पूरी इबारत आपके ज़बान से पढ़ना है और वो रिकॉर्डिंग करना, उस पर सच झूठ आवाम फैसला करेगी ग्रुप वाले, उस पर घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया, तुम मान नहीं रहे हो उसको, तो फिर क्या करना। दूसरी बात ये है कि आपके पास इतना वक्त था, आप बोलते मेरे पास आए यहाँ, तो 1 घंटे का वहाँ वक्त ले लो ना, आपकी जगह पे आ जाता हूँ। और अभी नहीं, मैं ये नहीं बोलता आज और कल दे दो, 2, 8, 15 दिन के अंदर जब भी है आप उसके लिए टाइम से बुला लो, रूबरू बैठ के बात हो जाएंगी। भाई इससे बेहतर आप ग्रुप वाले ही बताओ, इससे बेहतर कोई वक्त है। यूँ तो जब भी हम अपने मुफ्ती मुनीर साहब के पास आए, आपके पास वक्त होता था, यहाँ जरूरत थी तो यहाँ भी आते थे, अभी ये बात के लिए वक्त नहीं है। आज वही शेर खान भाई खामोश और इस मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं। तो भाई इन्होंने सीना ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं है, तुम्हारी बात इसलिए है कि वो बोलने के लिए इनको लेकर
रहा है, समझो मेरी बात। हाँ मगर भाई बोलने के लिए तो इनको बताना चाहिए ना। अब इनकी आपको ये इस चीज़ के अंदर बात करनी है। मंजिश के अंदर गिरने के सामने अगला इंसान ने चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बात के अंदर जिना का मतलब समझा कि जिना पे बात करके सुनो, ये झटका नहीं मैं बात कहूँ तो तुम्हारी बात से सहमत है क्या? शेर खान भाई तो कह रहे हैं ना सादिक भाई, वो समझो मेरी बात, तो मंजिश के लोग उनको बोलने के लिए लगाइए, साहब इनको बोलने के लिए, हमारे भी थोड़ा बीच में बोला, अपने बीच में बोला, सर मतलब अभी क्या समझे जो बात से हम जिना मतलब नहीं रहा, तो मैं जिना को गलत साबित और दूसरा मेरी एक बात सुनो अच्छा है दोनों साथ में आए तो कंफर्म करके आना चाहिए ना कि किस मौजू पे बात करना है, सुनो मेरी किस मौजू पे बात करना है। मैं बोलूँ हर चीज का कंफर्म नहीं था यार, सुनो मेरी मौलाना को साथ में ला रहे तो कंफर्म करके आना चाहिए ना। आलिम साहब भी 10 बार इनके कान में बोला कि ये टॉपिक पे बात करना है, ये तो इनको पहले से मशवरा कर लेना चाहिए था, पर कुछ बात ये चीज तो बोलना पड़ती है। नहीं, ये- भाई बोल रहे हैं गलत नहीं हो, सही है। नहीं लेकिन एक बात है, हर चीज क्या में सुनो नहीं होता है। मेरी आप बात जो कह रहे हो ना भाई, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन एक बात आप जैसे मौलाना साहब समझे कि भाई मैं समझा कि जिना पे बात होगी, आम जिना पे, तो ठीक खैर जो भी समझे, लेकिन फिलहाल अब हमारी ये बात ये हुई है, शेरखान भाई गवाह मौजूद हैं कि बताओ आलमगीरी की स्कैन पेज पे बात होगी, तो अभी फिलहाल तो इस पे बात कर लो। तो भाई तो मैं जब जिना से मैं कैसे बात करता हूँ? क्यों आपने इस पे तैयारी नहीं की? बताओ मैंने बोला था भाई, मैंने दूसरे पे नहीं कहा भाई, अब मैं ये भी कि तुम्हें दूसरे पे बोल रहा हूँ, आपने तैयारी नहीं की अगले और दूसरा हम लोग किताबें पढ़ने देना। चलो तो फिर अब क्या करना है प्रवीण भाई? टाइम आसान है। भाई एक बात और, जब हम लोगों ने तैयारी की सादिक भाई, हम लोगों ने जब तैयारी ये मसले के ऊपर अपने बैठे हुए तो ये भी तैयारी करके ही आए होंगे। एक बात समझो, इन्होंने इसका मसले सवाल उठाया तो उनका जवाब देने के लिए इनकी तैयारी इस मसले पर इबारत पे होनी चाहिए, बरोबर है। इन्होंने उसी का जवाब देने के लिए तैयारी करी है, तो अब इसी मौजू को अपने लेकर बात तो शुरू करें। इतनी देर होगी, शुरू क्यों नहीं हो रही है? बात होगी बात ये है कि तैयारी की जरूरत भी कहाँ है इनको, तो सारा तो तैयार करके इन्होंने रखा ही है। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, तैयार करके इन्होंने रखा है। आपको भी तैयारी की जरूरत है। तो जिना के मसले बात कर लो, ऐसा थोड़ी कि बोल दिया उसी के मुताबिक एक जिस मौजू पर बैठे हैं वो तो खुलासा करो। एतराज और कोई अल्फाज कह दिया कि हर आलिम कह गया बात लिखी, तो भाई मैं जिना इबादत की बात तो खुलासा तो कर, खुलासा करके क्या करना है इस मौजू पर बात करें नहीं करें भाई, वो अजान का वक्त होने वाला है और फिर अजान के बाद बात नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ अगले हफ्ते में आम जिना पे रख देते, जिना का हमारा पिता की तरफ से ये मौजूद हो रहा है, लेकिन हमको ये कबूल नहीं है। कौन सी बात? क्या आम जिना पर सब बहुत सारे मसले पर एक बात, चलो ठीक है, चलो ठीक, खैर समझ जाते हैं। चलो ये हफ्ते जो कुछ भी हुआ अल्लाह खैर, आइंदा हफ्ते अब तो आप तैयार होने का बताओ आलमगीरी की जिसके पेज पे बात करेंगे जिना पे भाई, आम जिना पे। तो आप तो मेरे को तैयार करो, आप भी तैयार करो, आप क्यों तैयार नहीं हो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं हर मसले का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी तरतीब सुनो, इसकी तरतीब ये नहीं जो ये बता रहे, बात उलझेगी, किसी को फायदा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप लो। मैं बता छेला फैसला रफुल यदैन के ऊपर अगर बात करेंगे अपने मौजू रहेगा रफुल यदैन, अभी नहीं हो हाँ बराबर। अच्छा, उसमें आप ये पाबंदी नहीं कर सकते कि सिर्फ ये एक ही हदीस पेश करना है। रफुल यदैन की जो भी हदीस आएंगे तो वो सब रखेगा हम बराबर उसकी तायद में। इस तरह जिना ये अपने फिका हनफी की जिना के ताल्लुक से आपकी मोहब्बर किताब है, उसके जो भी मसले आपके सामने रखेंगे, मौजू बदलाता नहीं है, किताबें भी आपकी और मौजू भी वही। उसमें कहा मैं बोलूँ मौजू बदलता है, मैं बताता हूँ किस तरह। जैसे कि आज हम जैसे हमने ये किताब खोली ना बताओ आलमगीर, इसमें आज के मसले का जो टॉपिक है ना वो इजारे का है, औरत को उजरत पे लेना, ताकि मेरी बात पूरी होने दो, औरत को उजरत पे लेना। अब इस पे उजरत पे लेके जिना क्या हद लगेगी या नहीं लगेगी समझना, ये एक मसला हुआ। अब एक दूसरा मसला है औरत को इयारे पे लेना, एक है इजारा पैसे दे के लेना, एक है इयारा कि भाई थोड़े टाइम के लिए तेरी बांधी देना मेरे को, फ्री में लेना, फ़र्क हुआ। इजारा इयारा शरीयत में सबके अहकामात अलग। तीसरा मैं बताऊं कि निकाह करा दोनों लड़का और लड़की ने भाग के करा, माँ बाप को पूछा नहीं, होली की इजाज़त नहीं ली, अब वहाँ हम बिस्तरी भी कर ली। अब देखो ये तीसरी शक्ल हुई ज़िना की। इस तरह चौथा मैं बताता हूँ कि निकाह करा गवाह नहीं रखे, कोई लड़के लड़की ने हिजाब कबूल कर लिया, निकाह हुआ या नहीं हुआ? बाज़ हज़रात कहते हैं हुआ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हो जाता है, बाकी का इमाम के नज़दीक नहीं होता है। अब जिनके नज़दीक नहीं होता वहाँ ज़िना हुआ, वहाँ ज़िना, ये ज़िना की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब आप कह रहे हैं टॉपिक एक टॉपिक नहीं हुआ मेरा भाई, यहाँ से वहाँ यहाँ से यहाँ बात
चीज में भाई चीज में अलग अलग है भाई किस चल रहा है में बात करें इसमें अलग अलग है कि जाएगी हाँ चीज में अलग अलग भाई सुन लो ये भी मानने के किसमें एक मिनट अब्दुल हमीद भाई बिलाल भाई ने भी अभी बात को कबूल करा कि जिना की किस्में अलग अलग है कि नहीं। मुफ्ती साहब ने बताया तो मुझे बता दे रहा भाई जिना भाई आपने बताया अलग भाई अभी मैंने जो भाई जिना के मसले भाई अच्छा मैं झूठ बोल दूं मुझे बता झूठ बोल दूं मस्जिद में बैठ के झूठ बोल दूं चलो ठीक है मैं झूठ बोल दूं अब सुनो बात को चलो इनको एक मौलाना बिलाल एक मिनट टाइम हो रहा है चलो एक मिनट भाई मौलाना बिलाल ने इस बात को कबूल किया है कि भाई जिन्ना की किस्में अलग अलग है और इनको अभी तक पता नहीं था अभी आलिम है इनको पता नहीं था कि भाई जिन्ना की किस्में अलग अलग है एक मिनट किस्में अलग अलग होने से जैसे मौलाना बताया कि टॉपिक बदल जाता है कि सबके मसाइल अलग अलग है जैसे 4 किस्में बताइए तब इनको पता नहीं था अब मौलाना कह दिया कि भाई 4 किस्में बताइए मौलाना यानी जिन्ना की इतनी किस्में नहीं अगर हम एक में बात करेंगे तो सब मौजूद अलग अलग हो जाएगा तो मौलाना कहने का मतलब है कि आप एक ही टॉपिक लो 4 किस्में हैं कोई भी एक टॉपिक लेकर कोई भी हफ्ता तय करो हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब भाई मैं बोल रहा हूँ मौलाना ने 4 किस्में बताई कोई 400 किस्में तो नहीं बताई कि हर टॉपिक में कोई 2-2 घंटे लगेंगे तो भाई 4 जो भी इनको जिन्ना की किस्में मालूम है अपनी किताब में जो भी जिन्ना है वो तमाम की हर किस्म साबित करे और बताए कि इस पे हद नहीं लगेगी इस पे उसको कुरान की हदीस पेश करे तो तमाम बोल रहा हूँ जो जिन्ना की जो मसाइल है तमाम जिन्ना के मसाइल की बात करें अपनी हालांकि हम लोग की किताब नहीं है किताबें फिक़ह हनफी की किताब इन्हीं लोग की किताब है और सब देवबंद से छपी हुई है भाई जिन्ना की तमाम जिन्ना की जितनी भी बातें तमाम पे बात करें भाई हम तो अगले हफ्ते बात करें तैयार कि उनकी किताब में जितने भी जिन्ना के मसाले तमाम पे हम बात करेंगे ये कह रहे अलग अलग मसाले पे बात करेंगे भाई क्यों अलग अलग मसाले पे बात करेंगे जिन्ना एक काम है हम उस पर बात करने तैयार हैं जिन्ना के मसाइल पे हमें इनकी बात का जवाब देता हूँ हम किसी भी एक मसले को हल करने बैठे हैं जिना की किस्में अलग अलग है अब इनको आवाम को फायदा होना चाहिए आवाम को फायदा होना चाहिए कि जिना की किस्में देखो आवाम को फायदा होना चाहिए हमको मसले को हल करने बैठे हम कोई उस बात को छोड़ करने नहीं बैठे हम मसला हल करने बैठे कि भाई इनको ये इबारत में ये तकलीफ है तो उसकी किस्म अलग है तो वो किस्म को समझना आवाम के लिए ज़रूरी है। मौलाना नहीं कहना चाहता कि सारी किस्में ले लो यानी जीना को आम करके तो कोई भी आदमी मसला समझ नहीं सकेगा कोई भी आदमी समझ नहीं सकेगा अगर हम सब मिलके कोई मसला समझना चाहते हैं हम आवाम हैं ये दोनों खास है उलमा इकराम है तो उलमा इकराम का हक ये बनता है किसी भी एक किस्म को लेकर आवाम को बात को समझाए हक तो यही होता है। अब तुम सारी जिना की किस्में ले लोगे तो आवाम कहाँ से समझेगी हम हल करने जिना की किस्में 400 भाई ना की बात है 4 तो है जिना की किस्में कोई 400 तो नहीं है कि हर दिन अलग भाई 4 किस्में बताए 4 किस्में बात कर लेते और इनकी किताब में ऐसा तो नहीं कि पूरी किताब में जिना से भरमा रहे शेर खान भाई ने ख़यालत से काम लिया है जो इनकी ऑडियो थी उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पहले ही कहा था कि चौराहे पे जो कुत्ते भौंकते हैं कि उनके सामने अगर शेर को छोड़ दो तो सारे कुत्ते भाग जाते हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका कि जब हक आता है तो बातिल को भागना ही रहता है और बातिल तो दुनिया में है ही इसीलिए कि उसका काम ही भागना है। तो जब शेर आता है तो गीदड़ और कुत्ते के हक में भागना ही रहता है। तो इस तरह तेरी हालत यहाँ पे हो गई है कि तू इस मौजू को छोड़कर फ़रार इख्तियार कर रहा है, उसूल की तरफ जा रहा है। तू सबसे पहले दुर्र मुख्तार की ऊपर की इबारत का तर्जुमा पढ़ दे और उर्दू तर्जुमा था तो ये ओरिजिनल खुदा आलम की और अब इसकी तरतीब क्या रहती है कि इसमें सब उलमा के कौल रहते हैं और उसमें ज़ईफ़ भी रहते हैं सही भी रहते हैं लेकिन आलिम पढ़ के ये फैसला करेगा कि भाई हमें अमल किस पे करना वो लिखा रहता है और अगर इसमें नहीं है तो बड़ी किताबें उठाओ वहाँ रहेगा कि मुस्ताबी कौल कौन सा जैसे कि ये मसला कि भाई हद लगेगी या नहीं लगेगी इस सूरत में तो साफ हमारी इस्तिलाह रद्दुल मुख्तार शामी में लिखा है कि उस पर हद है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी ये ज़िना है लेकिन इमाम साहब ने तो ये कहा है कि हद नहीं लगेगी उसकी दलील है उनके पास उसकी दलील है कि ऐसे अक़वाल साहबा और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए और मुस्तकिल बाप कायम किया किताब हुदूद में कि वो ज़िना देखो यहाँ पे साफ लिखा है अल-वतीउल मूजिब लिल हद कि वो ज़िना तो जिससे हद वाजिब होती है वो ज़िना ऐसी होती कि जिससे हद वाजिब होती है वो ज़िना है
اور پھر آگے لکھا ہے لا یجیب الحد، اور جس زنا کے اندر شبہ ہو جائے تو اس میں حد نہیں ہے. جیسے کہ لڑکا اور لڑکی نے اس طرح زنا اور ہم بستری کی ہے کہ وہاں ایسا شبہ ہوتا ہے کہ نکاح والا معاملہ ہو گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو نکاح والا معاملہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اس نے مہر دے دیا، ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ تو اس سے قرار کر لیا. جیسے کہ آگے حدیث میں بتاتا ہوں کہ میں نے بتایا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والا زمانہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے زنا کیا آپ غصے ہوئے اور یہ کہا کہ اگر میں تجھے پہلے بتا دیتا تو تجھے رجم کر دیتا، یعنی زنا کی حد لگاتا، لیکن نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی؟ وہاں شبہ، یہ شبہ پایا گیا. کیا پایا گیا؟ کہ کرنے والا متا کو حلال سمجھ رہا، متا کو حلال سمجھ رہا، اس لیے کیا حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اگر حضرت عمر پہلے بتا دیتے کہ متا حرام ہے پھر کرتا تو زنا کی حد لگتی. تو اس زنا میں شبہ پایا گیا. بات کرتا ہوں مشکل شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو حد بھی دے، اس کو مہر دیا جائے گا. اگر اس نے شوہر نے ہم بستری کی تو مہر دیا جائے گا. دیکھو یہ روایت، یہ مشکل شریف کی حدیث ہے، صاف حدیث ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. پھر اگر شوہر نے اس کے ساتھ مجامعت یعنی ہم بستری کی تو وہ مہر کی حقدار ہوگی کیونکہ شوہر نے اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا. اور اگر کسی عورت کے ولی باہم اختلاف کرے تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی بادشاہ ہے. اب دیکھنا نکاح اللہ کے نبی فرماتے نہیں ہوا، باطل ہو گیا. جب نکاح باطل ہو گیا تو زنا ہوا. پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے، زنا بالمشابہ ہے. یہ جو زنا ہوا ہے وہ نکاح کے مشابہ ہے، لہٰذا مہر دینا پڑے گا نکاح والا اور اس پر حد نہیں لگے گی. یہ تو وہ دو معاملے. اب تیسرا معاملہ دیکھ لو. تیسرا یہ ہے میرے پاس آثار السنن، اعلیٰ السنن ہے کہ جس کے اندر مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو واقعے ایسے پیش آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو واقعے پیش آئے کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں حدثنا ابن جریج حدثنا محمد بن سفیان حدثنا عن ابی سلمہ بن سفیان ان امرأة جاءت الى عمر بن الخطاب، کہ ایک عورت حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آئی. فقالت، اور کہا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے آئی، بکریاں چرانے کے لیے میں آئی. فلقینی رجل، ایک آدمی مجھے وہاں ملا. فحفن لی حفنۃ من تمر، اس نے مجھے کھجور کا ایک کوسا دیا. اس نے 3 مرتبہ ثم حفن لی حفنۃ من تمر ثم حفن لی حفنۃ من تمر، 3 مرتبہ کھجور کا کوسے کا کہا. ثم اصابنی، پھر اس نے میرے ساتھ شعبت کی، زنا کیا، ہم اس طرح کی. فقال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں ما قلتی، کیا کہہ رہی ہے تم؟ حضرت عمر غصے میں کہہ رہے، تعجب کے ساتھ، تو کیا بات کر رہی ہے؟ فاعادت، عورت نے پورا معاملہ پھر سے دہرایا کہ نہیں ایسا ہوا میرے ساتھ. فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا وَيُشِيرُ بِيَدِهِ مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس نے جو کھجور کے کوسے دیے وہ کیا ہے، مہر ہے، مہر ہے، مہر. دیکھو یہاں پہ حد نہیں لگی. حضرت ہوتا ہے کہ اونچی بلڈنگ سے گرا دو، اس کو ایسی سزا دو کہ بعد کے لوگ عبرتناک سزا کہ کوئی عمل نہ کرے. یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہی لکھا ہے. ان واصلہ بن اسقا، وہ فرماتے ہیں ان امرأۃ اصابها الجوع، ایک عورت کو بھوک لگی. فاتت راعیا فسألته الطعام فابى علیہا حتی تعطیہ نفسها، تو ایک عورت کو بھوک لگی اور وہ آئی ایک چرواہے کے پاس اور اس نے کھانے کا سوال کیا، بس اس نے انکار کیا اور یہ کہا کہ تو مجھے اپنا نفس قابو میں دے دے، یعنی تو مجھے تیری جسم پر قابو دے تو میں تیرے کو کھانا دوں. پر اس نے اس طرح کھجور کے 3 کوسے دیے. اس عورت نے اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا. اخبرت عمر، حضرت عمر کو خبر دی. فکبر، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا اور کہا مہرن مہرن مہرن، یہ جو تجھے دیا تم نے رضامندی سے لیا، یہ کیا ہے، مہر ہے، لہٰذا زنا کی حد نہیں لگے گی، لیکن طریقہ غلط. تو یہ چیز صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دلیل ہے کہ جہاں زنا کے اندر شبہ پایا جائے وہاں حد نہیں لگے گی، وہاں سزا لگے گی. اسی عبارت میں جس کتاب کو لے کر وہ آئے تھے وہاں صاف لکھا ہوا ہے استاجر امرات لیزنی بیا، کہ اگر کسی نے کسی عورت کو اجرت پہ لیا، پیسے دے کے کہ تو مجھے زنا کرنا ہے، یعنی دیا بھائی میں تجھے 1000 دیتا ہوں تو مجھے زنا کرنے دے گی. اب دیکھو عورت راضی ہوتی ہے
عورت کو بھی تو اختیار ہے نا منع کر دیتی، لیکن عورت راضی ہو گئی. او لیتاہا یا اس کے بعد وتی کی، او قال یا کہا اپنی کتاب میں، اور کہا خوزی حاضی دراہم، یہ پیسے لے لے اور مجھے اپنے اوپر قدرت دے. اور کیا کہ تو مجھے اپنے اوپر قدرت دے، اور اس نے عورت نے ایسا کرنے دیا تو اس پر حد نہیں لگی. کیوں نہیں لگے گی کہ یہاں پہ نکاح کا شبہ ہو گیا، عورت بھی راضی ہے مرد بھی راضی ہے، عورت اتنا مال لینے پہ راضی ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا مہر اور وہ شکل نکاح کی بن جائے گی. لہٰذا یہاں پہ ہوگا زنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ زنا ہے، کیونکہ بغیر گواہ کے تو نکاح ہوتا نہیں، تو یہ نکاح تو ہوا نہیں. لیکن قاضی جو ہوگا وہ امام صاحب کے قول کے مطابق اس کو حد نہیں لگائے گا. کیا کرے گا؟ تو صاف لکھتے ہیں وَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا، اس کو عورت کو مہر دیا جائے گا، وہ جو دیا وہ مہر دیا جائے گا. اور یہ جو اجارہ ہوا نا کہ اتنے پہ تو تیار ہو جائے، یہ باطل ہو جائے گا. وَيُجْعَانِ عُقُوبَةً، اور دونوں کو سزا دی جائے گی. وَيَحْبِسَانِ حَتَّى يَتُوبَا، اور دونوں کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ دونوں توبہ کریں. دیکھو یہ ہوا زنا، اب سزا دی جائے گی، حد نہیں. اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ حد لگے گی، تو ہم کو حدیث سے ایسی کوئی قرآن حدیث سے دلیل بتا دے ہوئے کہ جہاں حدیث میں ثابت لفظ کے ساتھ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ کسی مرد نے کسی عورت کو اجارے پہ لیا اور اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس پر حد لگے گی، ایسا کوئی مسئلہ بتا دیں. قرآن کریم میں جہاں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، وہ عام زنا کے بارے میں، زنا بالشبہ کے بارے میں نہیں ہے. اب دیکھو آگے ہمارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. وقالا یحدانی، صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کو حد لگے گی، یعنی زنا والی حد لگے گی. کما لو آتاہا مالا بغیر شرط بخلاف ما اذا قال، کہ یہ کہ اگر مال کی شرط کے بغیر، جیسا کہ مال کی شرط کے بغیر اس نے زنا کر لیا تو ظاہر سب کے نزدیک حد لگتی ہے. عورت کو کسی لڑکی کو پکڑ کے زنا کر لیا سب کے نزدیک حد لگتی ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی زنا ہوا ہے، حد لگے گی. اب یہ سوال کو لے کے یہ شیر خان اور مولانا بلال وغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں دیکھو فقہ حنفی کا گندا مسئلہ، حالانکہ مولانا بلال عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ فقہ حنفی مفتہ بھی قول کو کہتے ہیں. یہ ہے میرے پاس شامی عبد المختار، اور اس کے اندر صاف یہ مسئلہ لکھا ہے. دیکھو ولا حد بالزنا بالمستاجرۃ لہ، کہ اگر اجارے پہ لیا، اگر اجارے پہ لیا عورت کو تو اس پہ کوئی حد نہیں ہے. یہ مسئلہ لکھا ہے. اور آگے لکھا ہے والحق، اور صحیح بات یہ ہے وجوب الحد، کہ حد ہوگی. یعنی ہمارا نزدیک مسئلہ کیا مفتہ بھی قول کیا ہے کہ اس پر حد لگائی جائے گی. کل مستاجرۃ للخدمت، جیسے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت کو اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھا اور اس کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس پر جس طرح حد لگائی جاتی ہے اس طرح اس پہ بھی لگائی جائے گی. مسئلہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ حد لگائی جائے گی. لیکن امام صاحب ایک مجتہد ہے، ان کا ایک قول ہے کہ حد نہیں لگے، اور ان کا قول بھی دلیل سے خالی نہیں ہے. اور حدیث بخاری شریف کی کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، صحیح اجتہاد کر لیتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلطی کرتا ہے تو 1 اجر ملتا ہے. ہم کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم تانے کسیں کہ دیکھو فلاں مجتہد کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ فیصلہ کرے گا. لہذا یہ سراسر غیر مقلدین کا دھوکہ ہے. لوگوں کو بدزن اور ائمہ کرام کے خلاف بدزنی اور بد کلامی یہ ان کا شیوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مسئلہ صاف کلیئر ہے. اور یہ تو ہوگا ہی ان کی کتاب اپنا مسئلہ. اب میں آپ کو بتاؤں، اس پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں نے زنا کا طریقہ بتایا کہ اس طرح پیسے دے کے زنا کر لو تو جائز، حد نہیں لگے گی، برابر. اب ان کے عالم کیا لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا، یہ مولانا عبدالستار صاحب کتاب ہے غیر مقلد، حافظ عبدالغفار صاحب سلفی، فتاویٰ ستاریہ. اس کا اب میں ان کا مسئلہ اٹھا کے یہ کہوں، جیسے اس میں سوال کیا گیا ہے کہ زید نے جو کہ نمازی اور روزہ بھی رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، وہ برے کاموں سے توبہ بھی کر چکا تھا کہ اب کسی غیر عورت کو ہاتھ نہ لگاؤں گا. لہٰذا اس سے غلطی اب یہ ہو گئی کہ اس نے غیر عورت کو اب بوسہ لیا، اس کی چھاتی کو ہاتھ لگایا اور اس عورت کو گلے سے لگایا. اب ایسے شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کسی نے سوال کیا، جواب دیتے ہیں. الجواب بعون الوہاب، صورت مسئولہ میں واضح ہو کہ شخص مذکور کو سکھ کے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور کوئی نیکی صدقہ خیرات کرنی چاہیے. اب میں یوں کہوں کہ لوگ غیر مقلد عالم نے بھی لڑکی پٹانے کا طریقہ بتا دیا کہ اس کی چھاتی پہ بھی ہاتھ لگاؤ، اس کو بوسہ بھی دو اور آسان صدقہ کر دو. اب یہ الزام، حالانکہ ہمارے اکابر میں سے ہمارے علماء میں کسی نے آج تک ایسی ضرورت نہیں کی کہ اس طرح کے الزام اور بہتان تراشی، لیکن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اب یہ ان کی کتابیں مولانا وحید الزمان صاحب کی نزول الابرار، یہ دو یہ مولانا وحید الزمان صاحب کی نزول الابرار من فقہ النبی المختار. اب اس کے اندر تو کتنا صاف جو مسئلہ امام ابو حنیفہ کا ہے نا کہ جہاں شبہ ہو وہاں حد نہیں لگی، صاف لکھا ہے وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَاتِ الْمُحْتَمِلَةِ، کہ حد ثابت ہو جاتی ہے ایسے زنا سے جہاں شبہ ہو.
جیسے کہ امام ابو حنیفہ کو تھا وہی بات ان کا مسئلہ ہے. یہ عائد ہے مولانا بلال، لیکن ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے. ان کا مسئلہ وہی ہے. ہمارا نزدیک تو حد لگتی ہے، ان کے نزدیک حد نہیں ہے. وہ تو یہاں اگر بات ہوتی تو میں راز کو کھول دیتا، لیکن ان کے نزدیک مسئلہ. اور آگے کیا لکھتے پتہ ایک جگہ میں اسی پیج پہ وَلَوْ رَآ عَلَى فَرَشِي، اگر کسی شخص نے امراتن، اگر کسی شخص نے ایک عورت کو سوتے ہوئے دیکھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ بھائی یہ میری عورت سو رہی ہے، فوت ہوا، پھر اس کے ساتھ میں صحبت کر لی، ہم بستری کی، ایک مسئلہ. دوسرا او نادا اعما زوجت ہو، کہ اگر کسی اندھے نے اپنی عورت کو بلایا آواز دے کے، فَأَجَابَتْهُ امراتن، اس کی عورت نے اس کو جواب دیا. فَأَجَابَتْهُ امرأة اجنبیت، کوئی اجنبی عورت نے جواب دیا. اس نے بلایا عورت کو، اندھے نے جواب اجنبی عورت نے دیا. فوتی ہوا، اس نے بلا کے اس کے ساتھ میں زنا کر لیا، وطی کر لی. وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، اور وہ اندھا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے. عورت خاموش رہی، اندھا یہ سمجھ رہا تھا میری بیوی ہے. ثُمَّ بَانَتْ اجنبیت، پھر وہ اجنبی الگ ہوئی. فلا حد علیہما، یہ مولانا وحید السما صاحب غیر مقلد عالم کہہ رہے ہیں مرد عورت دونوں کا حد نہیں لگی. دیکھنا اب ساتھ میں آگے لکھ رہے ہیں وقال ابو حنیفہ علیہ الحد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت پہ حد لگے گی. کیوں حد لگے گی؟ مرد تو اندھا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، عورت کو بولنا چاہیے، زیادہ عورت نے اپنی مرضی سے زنا کروایا، یہاں پہ حد لگے گی. ہمارا مسئلہ تو صاحب الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ یہ زنا ہے، اس پر حد لگے گی. یہ تو خود غیر مقلدین کا مسئلہ ہے کہ ان کے نزدیک حد نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ دیکھو زنا کا طریقہ.